Hello everyone. Welcome to this edition of the Daily News Digest from KGIS. आज के कुछ before starting important articles, I wish you all the happy Children's Day today. I think it is important day for the students and also the child inside of all the old age people. So uh, now let's come to the important articles from the newspaper. The first article, which I think which is important in the today's the Hindu paper, as you can see here from the opinion page, the impact of Prime Minister Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in Jammu and Kashmir. So this was a study and survey in Jammu and Kashmir. So the particular data from Jammu and Kashmir is not important for us, but some of the data and some of the arguments which are general in nature and which are applicable to the whole India, which can be retrieved from this article for the UPSC perspective. So कुछ important चीजें जो इसमें है वो मैं बताना चाह रहा हूँ. The first thing, as you can see, the first paragraph, the International Energy Agency says about the 681 million people in India rely on the solid fuels for the cooking. So this data is important for us when we are talking about the clean cooking fuel and the adoption of clean cooking fuel in India and the performance of this particular scheme, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स के कनेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं हाउस होल्ड्स को. तो इसकी जब बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट जानना है कि हमें जो सॉलिड फ्यूल्स हैं वो कितने परसेंट लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं. तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हम किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग विच इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मेंशन है, इट इज टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ क्लीन फ्यूल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड एलपीजी कनेक्शंस टू पुअर. जो स्टूडेंट को देखना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज लोकेशन. कोई भी लोकेशन मेंशन हो तो वो देखना इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग इज डाटा एंड फैक्ट्स एंड थर्ड इज आर्ग्यूमेंट्स. सो मेंस के आर्ग्यूमेंट्स कैसे हम इसमें से निकाल सकते हैं, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टेड बाय द डाटा एंड फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ऑल्सो लोकेशंस इफ एनी. सेकंड थिंग जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का डाटा मेंशन है, बट अल्टीमेटली ये डाटा शो करता है कि हाउ वेल द स्कीम हैज परफॉर्म. सो जैसे फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज 85% ऑफ द हाउस होल्ड हैज ऑफिशियल एलपीजी कनेक्शंस. Nearly 68% of them were procured under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme. So this was a good data जो परफॉर्मेंस बताता है कि the scheme performed well in rural areas. We can generalize the data uh, in case of India also, but we cannot use the percentage directly because these percentage are only for the Jammu and Kashmir. Second thing, despite these substantial increase in LPG availability, traditional cooking methods remains pervasive. तो ये still traditional cooking methods, so both are used traditional cooking methods at the same time LPG connections. तो इसका रीजन क्या है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, cultural attachment to the traditional cooking methods. As you can see, some of the cooking, for example, cuisines which are basically made on the traditional cooking by the traditional cooking methods. So, a particular cultural attachment is there for those methods or for those cuisines. तो वो एक important factor है. At the same time, problem of affordability. So, होता क्या है, जैसे यहाँ आप you can see here the financial issues including the, for example, cost of refilling the LPG cylinders, so which is a very large issue, or for example, a hurdle in adopting these LPG cylinders or adopting the clean fuel. Next, which is mentioned here, is the reliance on the solid fuels such as firewood within an average consumption of 226 kilograms per household in 6 months reflect the dual use cooking system. So dual use cooking system जिसके बारे में बता रहा था, both the methods are used. One of the primary objective of this particular scheme is to alleviate the health burden on women by reducing their exposure to indoor smoke from the traditional cooking fuels. जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट है कि जो इंडोर पॉल्यूशन है उसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ डेथ कैन बी अमाउंटेड. तो वो पर्टिकुलर एक सोर्स हो जाता है पॉल्यूशन का और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी है इस स्कीम का, टू रिड्यूस द हेल्थ बर्डन ऑन वुमेन पर्टिकुलरली, जो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इन कुकिंग. सो ये एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन करना चाहिए.
यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि फॉर एग्जांपल यूजिंग या फिर फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड द पीपल वी आर हु आर यूजिंग दिस सॉलिड फ्यूल्स और द ट्रेडिशनल मेथड्स, तो दोनों के हेल्थ इंसिडेंसेस में काफी डिफरेंसेस है। तो ये बताता है कि ये स्कीम का जो परफॉर्मेंस है ये बेटर रहा है इन दैट टर्म। सर्टेन बैरियर्स आर स्टिल देयर, तो यहाँ पर स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए, विच कंटिन्यूज टू हिंडर द एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द कुकिंग फ्यूल। एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं ताकि हम ट्रेडिशनल को भी हटा दें और ड्यूल यूज को हम एंड कर दें। तो द फर्स्ट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द एलपीजी। सो वी जनरली इग्नोर द इंडोर पॉल्यूशंस, जो काफी सोर्सेज हैं इंडोर पॉल्यूशंस के, उसको जनरली हाउस होल्ड्स में इग्नोर किया जाता है। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। उसको भी हम लिंक कर सकते हैं कि सम हाउस होल्ड डू नॉट ओन अ टीवी, and also some of the female members which are who are responsible for the cooking do not possess a mobile phone. So mobile phone, TV and other media channels are important source of awareness for the rural households. तो ये एक important barrier है। Second barrier is I've already discussed here is the financial, the cost of refilling the LPG cylinders। तो ये भी एक important barrier हो जाता है। There is need of this more comprehensive financial support to make the LPG refills more affordable। तो ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट प्रोवाइडिंग कनेक्शंस इज नॉट इनफ। सो वी हैव टू इंश्योर दैट देर इज कंटिन्यूस रिफिलिंग, देर इज अवेयरनेस दैट using this clean air, so clean cooking source has an important health impacts। so ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जिस्ट है, जिसमें लास्ट में फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी conclusion, expanding the network of LPG distribution point in rural areas and extending financial support to refills could further increase the clean fuel adoption। So extending the network is no doubt the primary objective, but at the same time we should also promote the financial support for the refilling of the LPG cylinders। So this was all about this particular article, जिसमें से कुछ information students note down कर सकते हैं। Now I think I will invite Gaurav sir to continue this discussion। थैंक यू सर। तो एक आर्टिकल है आज द इंडियन एक्सप्रेस से। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे ये, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जीएस पेपर 3 एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रीलिम्स आल्सो। सो द न्यूज़ इज दैट डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, तो इन बैंक्स को, जो ये डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, इनको टू बिग टू फेल बैंक्स भी कहा जाता है। तो आरबीआई ने अभी कुछ बैंक्स को इस कैटेगरी में रखा है। वी शुड नो दैट देयर आर थ्री बैंक्स which RBI categorizes as domestically systemic important bank, and these are SBI, HDFC Bank and ICICI Bank. So why some banks are like categorized as like domestic systemically important banks and why some are not, we will delve into in a little while. But first of all, we should know that what is the backdrop of like categorizing some banks as domestic systemically important बैंक्स। तो इसके लिए हमको 2008 में चलना पड़ेगा, जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसमें कुछ बैंक्स थे लाइक लीमन ब्रदर्स, मॉर्गन स्टैनले, वो सब अचानक से कोलैप्स कर गए, और उनके कोलैप्स होने से पूरा एक इकॉनमी जो है वो कोलैप्स किया, नॉट ओनली इन यूएसए बट वर्ल्ड वाइड। सो तो उस समय बेसल नॉर्म्स ने उभर के आया, और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे बैंक्स होने चाहिए which in event of like failure government should take forward and help them so that they don't collapse, और जो इन्वेस्टर्स का मनी है और बाकी एक व्यवस्था, जो एक पूरी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है, वो चरमरा ना जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो as we see, as I have told that three banks RBI has categorized as domestically systemic important banks, and these are categorized like on the basis of फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक से कैटेगराइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो जीडीपी, उनका जो एक यहाँ पे आप सबसे लास्ट में जब आएंगे ना, तो ये लिखा हुआ है कि देयर साइज शुड बी अबव द 2% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का जो 2% है, जिन बैंक्स का जो एक पूरा एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अगर 2% ऑफ जीडीपी से ऊपर जा रहा है, तो उस तरह के बैंक्स को डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आरबीआई मानती है। तो दीज आर टू बिग टू फेल because
इफ दे विल फेल द होल इकोनॉमी विल फेल। लेट्स से फॉर द एग्जांपल, जैसे कि एसबीआई हम लेते हैं, इन्वेस्टर्स का इतना पैसा लगा हुआ है, उसने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए हुए हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनके पास। तो इस तरह की अगर एसबीआई अगर फेल होता है तो वी कैन से द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल हार्डशिप फेस करेगा। इसीलिए अगर एसबीआई इस कगार पे पहुंचता है दैट इट इज गोइंग टू फेल, गवर्नमेंट विल कम टू इट्स इट्स रेस्क्यू, सो दैट इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है और बाकी सब कुछ है वो सेफ हैंड्स में रहे। तो दे इज लाइक, तो इस इवेंट में ये आप यहाँ पे लिखा हुआ कि इससे होता क्या है, दे इज अ फायदा क्या है इसका, एसबीआई आर परसीव्ड एज अ बैंक दैट आर टू बिग टू फेल। द परसेप्शन ऑफ क्रिएट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टिंग। उससे ये क्या होता है कि ये बैंक्स जो है थोड़े लैक्स हो जाते हैं, काफी लोन फिर देने लग जाते हैं। हाउ द परसीव्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एम्पलीफाइज रिस्क टेकिंग बाय दीज बैंक्स, रिड्यूसेस मार्केट डिसिप्लिन। तो इन सब चीजों को फिर मिटिगेट करने के लिए इन तरह के बैंक्स पे एक्स्ट्रा बर्डन डालती है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनको जानना है, बेसल नॉर्म्स क्या है ये जानना है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो कि बैंक का एक जो अपना एक कोर रिजर्व है, कोर कैपिटल है, एज अ रेशियो टू द जो उन्होंने लोन्स दिए हैं। तो रिस्क वेटेड जो उनके फाइनेंसेस हैं उनका उसके साथ उसका रेशियो निकालते हैं, तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है। उसमें दो तरह के हैं, टीयर वन कैपिटल है, टीयर टू कैपिटल है। टीयर वन कैपिटल इज योर कोर रिजर्व्स ऑफ द बैंक, वेयर टीयर टू कैपिटल इज अनऑडिटेड रिजर्व्स। तो इसमें जो इस तरह के बैंक्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है। लाइक एसबीआई के लिए एक्स्ट्रा बर्डन है 0.8% से ज्यादा, जो कॉमन बैंक्स को रखना है उससे ज्यादा 0.8 है। एचडीएफसी के लिए 0.4% है, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए 0.2% है। और आरबीआई क्या करती है, थ्री बकेट्स में रखती है अकॉर्डिंग टू इट्स लाइक इसका इंडिया में रीच कितना है, कितने कितना लोन्स देते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरह का लीवरेज रेशियो क्या है। तो इस सब तरह के आधार पे आरबीआई इनको तीन कैटेगराइजेशन में रखती है जिसको थ्री बकेट्स कहा जाता है, और हर बकेट का एक अपना अपना नॉर्म है। तो वी कैन सी द डिफरेंट बकेट्स, आरबीआई बैंक्स आर एलोकेटेड डिफरेंट बकेट्स बेस्ड ऑन देयर सिस्टमिक इंपॉर्टेंट स्कोर, और वो स्कोर का एक इंटरनल क्राइटेरिया है, उस उसमें हमको अंदर नहीं जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं आरबीआई एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर जो होता है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट फॉर आरबीआई 0.8%, और एचडीएफसी के लिए 0.4% है। तो ये है, तो इन केस ऑफ फॉरेन अगर कोई बैंक है जो इंडिया में काम कर रही है, तो उसका जो वर्ल्ड में जो अपने देश में उसको नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ते थे, वो इंडिया में भी उसको वो नॉर्म फुलफिल करने पड़ेगा। तो और यहाँ पे आते हैं कि हाउ आर लाइक ये जो डी एस आई बी है कैसे सेलेक्ट होते हैं। डी एस बाई आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट बकेट्स बेस्ड ऑन देयर सिस्टमिक इंपॉर्टेंट स्कोर्स, दीज आर इंटरनल क्राइटेरिया, वी नीड नॉट डेल्व इनटू दैट। एंड इज सब्जेक्ट टू लॉस एब्जॉर्बेंसी। अगर आप पे लेट से कि अचानक से कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन आता है तो आप लॉस कैपिटल सरचार्ज क्या है, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके हिसाब से डिफरेंट बकेट्स में रखा जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी good article from the point of view of prelims also and point of view of your mains also. So I think this is basic takeaway from this article. Now I'll invite Manisha to carry this discussion forward. I have one article from the Hindu and it is today's editorial. So it's talking about the कार्डियोवैस्कुलर किडनी सिंड्रोम की। तो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू द इंक्रीज इन सच सिंड्रोम्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो है कि बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द एसकेएम सिंड्रोम इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम वी स्टार्ट गेटिंग लिटिल बिट वेट, उसके बाद हम धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, देन आफ्टर ए चैन रिएक्शन स्टार्ट्स इन आवर बॉडी विच लीड्स टू द यू नो मेजर बर्डन ऑन द किडनी, हार्ट और लिवर पे इसका बर्डन पड़ता है, और बिकॉज ऑफ दैट प्री मेच्योर डेथ की केसेस बढ़ रही है। इसमें बात की गई है ग्लोबल द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो रिपोर्ट है उसमें, और इसका एक डेटा है कि मोर देन 69% ऑफ प्री मेच्योर डेथ जो हो रही है वो इसमें कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल एनसीडी डिजीज का इसमें इम्पैक्ट है, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो एज एनसीडी जो डिजीज होती है दो टाइप की होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये
नॉन कंटेजियस होती है, मतलब ये एक दूसरे में फैलती नहीं है बिकॉज ऑफ स्निकिंग वगैरह का जो बाकी डिजीज होती है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक दूसरे में फैलती है। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है तमिलनाडु का, जिसमें स्टेप्स जो सर्वे होता है उसका दिया गया है। इसमें फाइंड आउट किया गया कि 28.5% पार्टिसिपेंट जो थे उसमें ओवरवेट देखा गया। फर्दर 11.4% में ओबेसिटी था एंड 33.9% में हाइपरटेंशन के केसेस देखे गए हैं। एज फार एज बात की जाए तमिलनाडु का, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है अपने इंडिया में, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस इन पब्लिक हेल्थ केयर इज रिलेटिवली बेटर देन अदर स्टेट्स। So in the last paragraph of this article is talking about we need to bring a paradigm shift in our approach towards such disease to control SKM syndrome. तो फिर यहाँ पे बात की गई रही जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, जैसे कि तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें ये पाया गया है कि जो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड डायलिसिस है, इसमें मेजर एक्सपेंस इन्हीं दो केसेस में हुआ है। और फिर ये आर्टिकल बात करता है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है हमें, कि जो 1/3 हमें 2030 तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम करना है। बिकॉज ऑफ दिस एसकेएम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बहुत चैलेंजिंग हुआ है। एंड नॉट ओनली दिस, इट विल ऑल्सो हैव रिपरकशन ऑन द इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद से यहाँ पे बात कर रहा है कि हाउ कैन वी चेक दिस, हाउ कैन वी कंट्रोल इट द स्प्रेड ऑफ दिस सिंड्रोम। तो इसमें अप्रोच चेंज करने की बात की गई है, जैसे कि अभी जो हमारा आइसोलेटेड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो आइसोलेटेड अप्रोच होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किडनी डिजीज के लिए किडनी स्पेसिफिक डॉक्टर के दिखाते हैं, हार्ट डिजीज के लिए हम हार्ट स्पेशल के पास जाते हैं। तो वी नीड टू ब्रिंग ए इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम। दिस आर्टिकल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन की जो एरिया है, वहां पे भी हमें काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल इट सजेस्टिंग कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू मदर्स, जो औरतें हैं, लड़कियां हैं या प्रेग्नेंट औरत हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉजिटिवली रहेगा उनके हेल्थ पे। अलॉन्ग विद इट दिस, इसमें ये बताया कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम राइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं वो मोटापा को बढ़ाने में ये करता है। तो वहां पे हम पार्शियली रिप्लेस कर सकते हैं राइस को मिलेट के थ्रू, वहां पे हम मिलेट को यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट लास्ट पार्ट में ये बात करता है कि हाउ आवर लाइफ स्टाइल इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक्सटेंडेड वर्क आवर का कल्चर है वो हमारे हार्मोन लेवल को डिसरप्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं, और ये प्रमोट करता है कॉर्टिसोल को, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ये करता है ड्राइविंग अनहेल्दी उसके ये क्या करता है, ड्राइविंग अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल बात करता है हाउ कैन वी चेक इट। तो वी नीड टू रेगुलेट द वर्क आवर एंड शिफ्ट मेनी आर्ग्यू एसेंशियल पब्लिक हेल्थ मेजर्स एज एनी मेडिकल इंटरवेंशन। तो ये बात बेसिक करता है कि जो प्रॉब्लम है स्कैम का ये क्यों है, how can we check it at the institutional level, how can we bring the change in our approach, and how the globalization is impacting overall health system of our country or across the world. So this is the basic takeaway from this article, and with this I would like to conclude today's session.